All right, we are going to do the gravitational potential energy of two particle system. Suppose ये दो particles हैं M1 and M2. What will be its gravitational potential energy? Gravitational potential energy will be equal to work done by external source to bring these particles from infinitive to their respective position. Infinite distance पर है, इनको अपनी जगह पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, that work done will be equal to potential energy. ठीक है, तो gravitational potential energy of two particle system is defined as the amount of work done by external source to bring the two particles to their respective places from infinity. It is equal to minus g m1 m2 by r. It is a scalar quantity, unit is joule, dimension is m n square t minus 2. पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हम PE लेंगे और U लेंगे. NCERT बुक दे राइट V, बट V हम लोग पोटेंशियल के लिए लेंगे तो we not use this symbol, we will use U or P. ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करना है. मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन एक्सटर्नल सोर्स कितना वर्क करेगा इनफाइनाइट से इनको अपनी पोजीशन पे लाने के लिए. तो क्या करते हैं इसमें, देखो we take the two particles M1 and M2 at A and B and M2 M1 को फिक्स कर दो, M2 को C पर भेजते हैं. तो consider two particles M1 and M2. Let M1 is the fix, M1 is fixed and M2 is taken from B to C. Okay. We have to find change in potential energy from B to C. Okay. This point we are not finding this. What we are doing now, we ship particle from B to C. We M2 is taken from B to C, taken from B to C. ठीक है. Now at somewhere here at D, its distance is R, and at E, distance is R plus dr. Dr is very small, in fact, where we can take force constant. Consider small displacement when distance changes from R to R plus dr. Particle M2 goes from D to E. यहाँ से यहाँ तक जा रहा है on the way. Now force on the particle M2 by the M1 will be gravitational force G M1 M2 by R square in this direction, and displacement is in this direction. Angle is 180. Work done will be negative. Work done by conservative force we are talking about. तो ये force होगा along DA, and work done by gravitational force, that is conservative force. For displacement dr will be minus, दोनों opposite है तो माइनस आगे आ गया, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया dr. माइनस साइन मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड एफ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये हमने कंजर्वेटिव का निकाल दिया, बट व्हाट वी हैव रिटन हियर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स which will be negative of work done by conservative force. Since work done by external force is negative of work done by conservative force, both are always equal and opposite. तो ये वर्क डन यहाँ पे W लिखेंगे, ये माइनस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमारा बाहर नेगेटिव लिखा हमने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, ये ऊपर जो सिंबल है ये वाला माइनस DWC. तो वैल्यू पुट कर दो, इसकी ऊपर जो फॉर्मूला ये वाली वैल्यू पुट कर दो, माइनस G M1 M2 बाई R स्क्वायर dr प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा G M1 M2 by R square dr. But work done by external force is equal to change of potential energy. Therefore, work done by external force, external source की जगह हमने ये du पुट कर दिया, ये वैल्यू w को du से रिप्लेस कर दिया, राइट साइड में सेम. नाउ
हमें क्या करना है, इनफाइनाइट से आर पर लाना है पार्टिकल, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ। जब पार्टिकल इनफाइनाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, दे विल नॉट इंटरेक्ट। जब आर पे है पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाएगी। लेफ्ट साइड में तो वन का इंटीग्रेशन यू आ गया, और इसका इंटीग्रेशन जो है -g m1 m2/r हो जाएगा, क्योंकि r ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। और r⁻², का कितना आएगा, r⁻1 अपॉन -1। देखिए r⁻², एक पावर ऐड हो जाती +1, तो r⁻1 बचेगा, नीचे भी -1, तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, और r⁻1 डिनोमिनेटर में चला गया, ये तो नेगेटिव होती है। इफ r इज इन्फिनिटिव, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी विल बी जीरो। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, वो मैक्सिमम होगी, बिकॉज अदरवाइज इट इज नेगेटिव। इट इज नेगेटिव, जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, तो जीरो इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। कास्ट एग्जामिनेशन में भी ऐसा होता है, जीरो मीन्स मैक्सिमम, तो एनीबडी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, बट ऐसा नहीं है, केवल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जीरो है, विच इज मैक्सिमम एंड विच इज एट इंफिनिटी। गॉट इट? तो दैट्स हाउ डेरिवेशन गोज। व्हाट वी डिड इज, हम लोगों ने क्या किया, पहले कंजर्वेटिव का निकाला, फिर एक्सटर्नल सोर्स का जो होता है वर्क डन उसका नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस इनके प्लस हो गए, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो पुट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो और आर पर पोटेंशियल एनर्जी यू, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। दैट्स हाउ इट इज डन। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आ गया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे कोई मास है m, दैट विल बी m1, अर्थ का मास m2 हो जाएगा, तो ये फार्मूले से -g एज इट इज, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो अर्थ पार्टिकल पर, अर्थ सरफेस पे कोई पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी आती है, एंड दैट इज जूल। सपोज फॉर एग्जांपल योर मास इज 64 kg एंड यू आर ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी? ये फार्मूला लगा दिया हमने, जी की वैल्यू पुट कर दी, मास, योर मास इज 64 kg, अर्थ का मास हमने 6 into 10⁻24, मास ऑफ द अर्थ इज 5.9 into 10⁻24, बट इट्स अराउंड अबाउट 6 ले लेते हैं, 10⁻24 kg, और डिस्टेंस अर्थ का, अर्थ के रेडियस, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इतना हो जाएगा, 64 into 10⁻5, 6400 होता है रेडियस। Let us write it with the black. किलोमीटर में है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं मीटर में। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 40.02 into 10⁻8 बचेगा, ये माइनस इसको 4 लिख के पावर 1 बढ़ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा जूल में, माइनस है ये। योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस मच इफ योर मास इज दिस 64 kg, quite high value in negative, but it is minus है आगे। Now for 3 particle system m1 m2 m3 at vertices of the triangle, 3 पेयर बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो u1 2 एंड 1 एंड 2 के बीच में बनेगा, 2 एंड 3 पार्टिकल के बीच में बनेगा, एंड 1 एंड 3, तो बस इनका अलग अलग लिख देंगे, -g m1 m2 अपॉन दिस डिस्टेंस, इसका m2 m3 अपॉन दिस डिस्टेंस माइनस भी रहेगा, एंड इसका 1 and 3 and upon this distance वैसा। 4 पार्टिकल्स के लिए क्या बनेगा, 6 पेयर्स बनेंगे, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, 4 हो गए, 2 डायगनली बनेंगे, टोटल 6 पेयर। इसका एक क्वेश्चन भी है, सॉल्व एग्जांपल विल सी 4 पार्टिकल्स का, इट्स हियर, जस्ट नोट डाउन।
क्वेश्चन इज हियर, यहाँ पे देखिए ये है 4 पेयर्स 4 पार्टिकल्स हैं, सभी का मास सेम है एंड इट इज योर स्क्वायर ऑफ साइड एल। तो 4 पेयर बनेंगे, एक पेयर का कितना होगा -g, m1 m2 दोनों इक्वल है, m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस एल है, इंटू 4 कर दिया, तो ये 4 पेयर्स का आ गया। डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लिया L√2, इसका क्या आएगा -g m स्क्वायर L√2 इंटू 2 कर दिया, डायगोनल में 2 डायगोनल है, ये आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। एक पेयर का निकाल के 4 टाइम्स कर दिया, एक डायगोनल का निकाल के ट्वाइस कर दिया, बिकॉज 2 पेयर्स डायगोनली इंटरएक्टिंग। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका 4 पार्टिकल्स का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। दिस वाज द सॉल्व एग्जांपल। नाउ we are doing very basic question of 2 particles. देखिए रेफर डायग्राम एंड राइट द रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो अभी जो फार्मूला सीखा था क्या है, U इज इक्वल टू -g m स्क्वायर बाई r, दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, m1 m2 विल बी m स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू send particles to infinity. So work done by external force is equal to change of potential energy, that is delta U, that is U2 minus U1. तो U2 क्या होगा -g m स्क्वायर, डिस्टेंस U2 इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनफाइनाइट पे डिवाइड बाय इनफाइनाइट, ये इनिशियल है g m स्क्वायर r, ये तो 0 हो गया और ये आपका हो जाएगा +g m स्क्वायर बाई r। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज g m स्क्वायर बाई r, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो रिमेंबर दिस इज वेरी यूजफुल रिलेशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी which is equal to delta U plus delta U, and this which is equal to final potential energy U2 minus initial potential energy U1. So very important formula. Now third part, find the work done by conservative force to send the particle to infinity. तो ये इसके अपोजिट होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो ये वर्क डन निकाला हमने, इसको माइनस कर दो g m स्क्वायर बाई r, ये आंसर हो गया इसका। वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स उसके अपोजिट लगता है। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट यू हैव टू डू इन होमवर्क। Find the work done by external force if separation becomes half of the initial value. ये होमवर्क में करेंगे फिर से वही, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U2 minus U1। ना U2 में डिस्टेंस कितनी हो रही, हाफ हो रही। ये नेगेटिव कैसे आता है देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी and work done by external force is positive of change of potential energy. Therefore, both are equal and opposite in sign. ठीक है, so that's how this both are equal and opposite in sign. That's all from my side. My side will continue tomorrow further.